Right. Anyone want to ask this one? First one? No, sir. No. Okay. Second one is okay. So directly we have to go for the third one, right? The third one. Good evening, sir. Good evening, Abhijit. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं है बेटा, इसलिए मैं थर्ड पर आ गया हूं, राइट? Sir. Right. That you have to prove this, right? So anyone who can help me out on this? Anyone? No? See. What we can do, this is given, right? Cosec x minus cot A, right? What is the conjugate of cosec A minus cot A? Cosec A plus cot A. Very good. So I'm multiplying this by cosec A Plus cot A. plus cot A. So the numerator multiplying the denominator will take the square of this. Is this okay? A plus B into A minus B will be A square minus B square. What is the value of cosec square A minus cot square A? Sir, 1. 1. So this is nothing but cosec A plus cot A minus 1 by sin A. And we know that 1 by sin A is nothing but cosec A. So I'm again rewriting this. Cosec A plus cot A minus 1 by sin A. This 1 by sin A I'm writing cosec A. Is this okay? Little bit. Sir, तो बस cot A बचा. Right, cosec A minus cot A, right? But I'm not cancelling out both, right? This is the trick, right? I'm not cancelling out, right? Cancel करने के बाद I'll be trapped, ना? वो मैं फंस जाऊंगा वहीं पे. So what I'm doing, this cosec A, I'm writing this, and I'm taking a minus sign from this. So minus of this will be what? Cosec A minus cot A. Is this step is clear? Yes, sir. Right? So now I have to multiply this cosec A plus cot A and divide this by cosec A plus cot A. Right? What, sir, I did not understand. Is this okay? Huh? Sir, I did not understand this division. Division, I'm just multiplying with the conjugate. Oh, Multiplying with the conjugate. okay, sir. Okay, sir. Right? Yes, sir. सर वापस से समझा सकते हैं क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था वो वाला है. यस सर. एक मिनट. See, this was the question, right? 1 by cosec A minus cot A minus 1 by sin A, right? This you have to prove. तो फर्स्ट स्टेप पे व्हाट वी डिड, थोड़ा सा इसमें चेंज करके ये जो नंबर है इसे cosec A प्लस cot A से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर, राइट? सो डिनोमिनेटर में विल गेट cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A एंड न्यूमरेटर में जो नंबर है cosec A प्लस cot A आ गया, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A? That is 1. Very good. So उसे मैंने 1 लिख दिया, तो what I am getting cosec A plus cot A minus cosec A, right? मैंने ब्रैकेट्स को यहाँ ले आया, right? Brackets मैंने यहाँ ले आया and I'm taking a minus sign from this, right? So I'm getting cosec A minus cosec A minus cot A. Now, ठीक है? यहाँ तक में okay? Now I'm multiplying and dividing this by cosec A plus cot A. So what I'm getting is cosec A minus the multiplication will be cosec square A
minus cot square A upon cosec A plus cot A, right? न्यूमरेटर 1 हो गया. Right? So numerator is 1. So this cosec A is 1 by sin A minus 1 by cosec A plus cot A. कुछ यही तो प्रूफ नहीं करना था, Yes, sir. right? Without changing this. Hello. Without changing this, we are getting the answer, right? Sir. Yes, Vijay. cosec plus cot A minus cosec A जब था तब आपने cosec A को कैंसिल क्यों नहीं किया? cosec को कैंसिल कर देता तो मेरे को जो प्रूफ करना था वो प्रूविंग मेरी नहीं आती, अच्छा right? ठीक है सर. Okay. Jayes, you want to ask anything? तो अगर आप स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं शायद लेट आया कुछ. जस्ट ये क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ बेटा, ये सॉल्यूशन लिखा हूँ, देखो थर्ड वन. एंड एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. विहान, विजय, किमाया, जील, पुरंजय. या यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मुझे ठीक कैमरा ऑफ है, रखना पड़ेगा. चेक करके थोड़ी देर में कर लेना ना. इसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, राइट? सर 5 क्वेश्चन दिए थे आपने ग्रुप में. अपने इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो नहीं आया. तो आपने सिर्फ इतने क्वेश्चन दिए थे ना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो इसमें कौन से डिस्कस करने के लिए है उसे देख लेते हैं हम लोग, राइट? आई हैव टू राइट इट डाउन हियर. सी, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था जो मैंने आपको दिया था. 1 minus sin theta plus cos theta the whole square is equal to, you have to prove this, 1 plus cos theta and 1 minus sin theta, right? अरे नहीं, ये इसने कुछ कर दिया, ये पहले से है इसका प्रॉब्लम. क्या कर दिया? No, is this okay बेटा? गुड इवनिंग सर. यस सर, ये ठीक है. ठीक है, दिख रहा है? यस सर. तो 1 Sir, minus 1. पहले हम लोग दोनों ब्रैकेट खोलेंगे ना, राइट और लेफ्ट के. Okay, you want to do it from right to left? अच्छा, सर दोनों साइड के ब्रैकेट मैंने खोले पहले और फिर लेफ्ट से प्रूव किया मैंने. ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड. लेकिन हमेशा हमारी कोशिश ये रहे ना, राइट? सर लेफ्ट को ही ओपन कर देंगे तब कॉमन निकाल के आ जाएगा राइट वाला. ना चाहिए ये कोशिश करो कि लेफ्ट को ओपन करो तो राइट आ जाओ, बड़े सिंपल वे में आएगा. मैं करके दिखाऊं? ओके सर. It's a beautiful arrangement, very simple and beautiful arrangement of the number. What I'm doing, I'm taking this 1 minus sin theta as 1 and cos theta as 1. So I'm writing this as 1 minus sin theta the whole square plus a plus b the whole square. This is a, this is b. So a plus b the whole square is a square plus b square plus 2 a and b. Is this okay? Is this okay, everyone? यस सर. Now, what I can write this cos square theta. सर 1 minus sin 1 minus sin square. 1 minus sin square theta. So this is 1 minus sin theta, the whole square, plus 1 minus sin square theta plus 2, 1 minus sin theta into cos theta, right? And taking out this 1 minus sin theta from this, let's see what is the number we are getting in this. The first one,
I'm getting only 1 minus sine theta. Second one, a square minus b square. Formula is a plus b into a minus b. So this will be 1 plus sine theta. And 1 minus sine theta is common out. So this is 2 cos theta. And sine theta cancel out. This is 1 minus sine theta into 2 plus 2 cos theta. 2 common out from this. 1 minus sine theta into 1 plus cos theta. Is this okay? सर सर जो आपने कल जो 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, उसके अलावा आपने तो कोई और क्वेश्चन नहीं दिए? हाँ बेटा, राइट, अभी दे रहा हूं, आप लिखना। सर हम्म, सर मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया इसे। क्या किया बेटा, बताएं। सर मैंने भी दूसरे मेथड से किया है। सर क्या- मैंने उसे एक्सपांड ही कर दिया, उसको होल स्क्वायर को। मैंने ऐसा ए और बी कंसिडर नहीं किया, मैंने उसे सीधे एक्सपांड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, नॉट बैड नॉट बैड नॉट सर बैड। मैंने भी दोनों तरफ के ब्रैकेट खोल दिया और फिर कोशिश करना ना राइट साइड को मेरे को ना छेड़ना पड़े। नहीं सर, राइट साइड कुछ नहीं किया मैंने, लेफ्ट साइड से किया। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा था बेटा ना कि राइट साइड को हम लोगों को मैनिपुलेट ना करना पड़े, धीरे धीरे आएगा वो। राइट, वो अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे कि नहीं मेरे को ये जाना ही है, मेरे को फोर्स करना है कि यहाँ से मैं वहां जाऊँ, तो ऑब्वियसली अगर दोनों को ओपन करके आ रहा है तो ये फोर्स करके उधर चला ही जाएगा। राइट, दिस यू अंडरस्टैंड ना। ध्यान से देखो तो ये लगेगा ना ऐसा कि इसी के कारण तो क्वेश्चन फ्रेम किया था कि 1 माइनस साइन थीटा अपने आप कॉमन आ जाने पूरे से। राइट, बट द बेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, आओ इसको 1 2 3 तरीके से करते हैं। राइट, दिस इज द क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। राइट, प्रूव दैट। सर √2 cos थीटा का होल स्क्वायर था। नहीं बेटा, केवल √2 cos थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। दिस यू हैव। सर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। जिसमें तुम्हें प्रूव करना है उसमें, जिसमें प्रूव करना है उसमें, नॉट बैड। एक तो ये तरीका जाएगा, बिल्कुल सही है। सर हम साइन थीटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं उस साइड। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा तरीका लग रहा है। और कोई तरीका? सर वो √2 cos थीटा को पूरी तरह होल स्क्वायर करके काम खत्म। होल स्क्वायर को सर open- हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी मिल रही है कि cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जय से एक बार पहले कर लेते हैं क्वेश्चन बेटा, उसके बाद बोलेंगे ना। टेक योर टाइम, पहले कर लो क्वेश्चन को ना। अनुष्का, डन? सर मैंने सेम को स्क्वायर करके ही दिस निकाला स्क्वायर था। किया, नॉट बैड। अभिजय, √2 sin थीटा है क्या? क्या बेटा प्रूव जो करना है? अच्छा, ओ कि मानिए सॉरी सर, मैं पहला इक्वेशन को लिख के प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुरंजय, यस सर। कैमरा ऑफ है बेटा आपका? सर हो गया प्रूफ। वेरी गुड बेटा, जस्ट तो 1 से 2 मिनट का और टाइम एक सर बार हो गया। अटेम्प्ट कर ले। वेरी गुड, अच्छा है अनुष्का, वेरी गुड। मैं ट्राई करूं? चलो, फर्स्ट मेथड क्या बता रहे हो आप लोग, स्क्वायर करके? सर दोनों साइड स्क्वायर करके प्रूफ कर वेरी लेंगे। गुड, cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट, नहीं सर 2 cos स्क्वायर थीटा होगा ना। गिवन था तो cos कर लेते हैं बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। राइट, अब मुझे क्या चाहिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग? सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। 2 cos थीटा साइन थीटा। अरे वाह, ये तो डायरेक्टली आंसर दे देगा नहीं?
और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो इधर केवल बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, राइट। इस वाले को ट्रांसफर कर देता हूँ राइट में, आई एम गेटिंग, इसे पहले लिख रहा हूँ ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक अपनी तरफ से किया तो यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, अंडर रूट दोनों साइड लिया मैंने, cos थीटा सर cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। बट एक छोटा सा पंगा यहाँ पर है कि क्योंकि स्क्वायर को मैं अंडर रूट ले रहा हूं तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ सकता है, नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी चलेगा। बट छोटा छोटा सा एक ये है, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 4 होगी, नहीं, बेसिक लॉजिक, राइट। तो ये वाले को मेरे को थोड़ा सा जस्टिफाइड करना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट करेक्ट, ठीक है। सर दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर सकते हम लोग? नॉट बैड, अभी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ दिन और होगा हम लोग को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना। दोनों साइड स्क्वायर करके होता क्या है कि हम ना वो एक्सट्रीनियस रूट लाते हैं, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं एक्सट्रीनियस रूट, हाँ, एक्स्ट्रा रूट ले आते हैं। दिखाता हूँ, थोड़ा जादू सा दिखेगा आप लोगों को। ये तो सबने नोट कर लिया, हिमाया नोट कर लिया बेटा? डन, विहान डन बेटा, अमोक सर। सी। एक छोटा सा यहाँ पर यस सर। अभी ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर रहे हो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ देखना, x इज इक्वल टू, मान लो नंबर दिया हुआ है 2, सिंपल सी बात, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 2, राइट। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, ठीक है स्क्वायर कर लो। मैंने स्क्वायर किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन किया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस 2 भी आ गया और एक माइनस 2 भी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो x की तो दोनों वैल्यूज है, तो जो भी वैल्यूज आपने इक्वेशन से निकाला है, सुनना ध्यान से ना, जो भी इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। करनी चाहिए। 100% करनी चाहिए। तो मैंने बोला ये x जो है इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, 2 इज इक्वल टू 2 तो होता ही है, उसी समय माइनस 2 इज इक्वल टू भी 2 हो गया, मतलब 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया तो 4 इज इक्वल टू 0। इसको 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अमोक तू मेरे को 100 रुपये देगा तो मैं तेरे को कितना वापस करूंगा? सर 0। और बैलेंस रहेगा इसमें, फिर बाद में मत बोलना सर कम आ गया, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो ये क्यों गड़बड़ हो रही? तो गड़बड़ होने का रीजन हमने इसको दिया, कैसे दिया? हमने इसे स्क्वायर कर दिया, हमने एक रूट को बढ़ा दिया, राइट। इसलिए कभी कभी ये चीज आपको ना थोड़ा सा परेशान कर सकता है, राइट। ओके नाउ, बट ठीक है, गुड अप्रोच, अच्छा अप्रोच है, मैं अप्रिशिएट करूंगा, मतलब ओवर फर्स्ट मेथड ये रहा, राइट। राइट सूरज, कुछ बोल रहे थे आप, आपने कुछ सेकंड मेथड लगाया बेटा? यस सर। वेरी गुड, मेथड और- 2। यस सर, मैंने साइन थीटा के लिए कॉस थीटा को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड पे, और फिर मैंने √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से। वेरी गुड, तो आपने cos थीटा को ट्रांसफर कर दिया, यस सर। मतलब कैसे, डिवाइड करके या माइनस करके? माइनस सर। ओके, तो आपने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू cos थीटा। यस सर, फिर मैंने √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। वेरी गुड, ब्यूटीफुल मेथड। √2 प्लस 1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आएगा सर। वेरी गुड, √2 स्क्वायर इज 2, 1 स्क्वायर इज 1, तो 2 माइनस 1
इंटू कॉस थीटा अपॉन √2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया √2 + 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ब्यूटीफुल मेथड बेटा। √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसे मैं ट्रांसफर कर दिया 1 के साथ ये वाले को राइट साइड में। आई Yes. यही हमें प्रूव करना था। दिस इज द सेकंड मेथड। सर यस बेटा। सर हम लोग ने अगर समझे इधर का सेकेंड स्टेप तक आए और फिर सर हम लोग ने tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 लिखा तो सर फिर होगा। एकदम होगा। थर्ड मेथड अभी करके दिखाता हूं। आप सोचो, मेथड मैं दे दूंगा, आप सोचो कि सर ऐसे सोच रहा हूं ना, निकाल मैं दूंगा कि वहां से कैसे निकलना है। मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक नियम है फ्लो लाइक वाटर। आप पानी गिरा दो, पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता। आपका दिमाग भी उतना ही लूसिड होना चाहिए कि आप कहीं भी फंसे हो तो वहां से आपको रास्ता निकालना है। इट्स अ मोस्ट नेचुरल थिंग, राइट। मैथमेटिक्स एकदम नेचर से है बेटा। तो आप शुरुआत कर दिए सोचना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन आप दे दोगे उसका। आपने बोला कि सर tan थीटा लेंगे तो क्या हो सकता है, अभी उसी से प्रूफ करके दिखाऊंगा। जल्दी से ये नोट कर। आप में से और किसी ने कोई थॉट प्रोसेस लिया हो तो वो बताएं, मैं वहां भी जाऊंगा पहले tan थीटा वाला करने के लिए। सर टेल मी। सर मैंने ऐसा सोचा था कि अगर ऐसा नहीं, ओके ओके सेम रहता है। कौन सा, ये वाला tan थीटा वाला या ये हाँ सर, नहीं से tan थीटा सेम tan थीटा? अभी दिखाता हूं। डन। तो मेरे पास है तो cos theta plus sin theta is equal to square root of square cos थीटा प्लस cos थीटा। so cos theta minus sin theta whole square हम्म is equal to cos square theta plus sin square theta minus 2 upon sin a cos a। हम्म। फिर उसके बाद एक मिनट, थर्ड मेथड करके तुम्हारे वाले मेथड पे आता हूँ ना जी। हाँ 2 मिनट हाँ ना। हाँ हाँ यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, थर्ड मेथड। मैं केवल आपका नजर खोलना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप सोचने का तरीका चेंज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होता, क्वेश्चन कई तरीके से होता है। हमें थॉट प्रोसेस हमारा क्या है उसे देखना है, राइट। एंड धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ कॉस से डिवाइड किया तो व्हाट यू आर गेटिंग 1 प्लस, राइट, और बेसिक से कर लो, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √2। इज दिस ओके? अगर मैंने दोनों में cos थीटा से डिवाइड किया तो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √2, राइट। 1 को मैं ट्रांसफर करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। इज दिस ओके? यस सर। राइट। अब अच्छा √2 - 1 को मैंने √2 + 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस ओके? यस सर। राइट। तो √2 + 1 इंटू √2 - 1, व्हाट इज दिस वैल्यू? 1 1। वेरी गुड। तो tan थीटा मेरे पास जो आया उसे लिख दिया √2 + 1। tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। सो √2 sin थीटा is equal to what is that? Cos theta minus sin theta. Is this okay? अमोघ, यस सर। यही जा रहा था बेटा। हमने खींच लिया वहां से आराम से आंसर, नहीं? यस सर। और दूसरा फोर्थ मेथड पे आए। जील, नाउ योर टर्न बेटा। हाँ तो cos theta plus sin theta is equal to √2 cos theta है ना। तो cos theta minus sin theta whole square is equal to cos square theta plus sin square theta minus 2 sin theta cos theta करके और दोनों साइड को cos theta से डिवाइड करके फिर sin theta is equal to square root 2 माइनस cos थीटा आता है। फिर sin थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 वो सब्स्टिट्यूट करके cos थीटा
माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू साइन थीटा आता है। ये वाला यही मेथड है बेटा, फर्स्ट वन है ये, आप जो बोलते हो ना। मुझे भी हाँ पहला वाला मेथड ही पहले सूझा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बचना है स्क्वायर करने से, बट एक वो दिखाना तो बच ही गया ना, फोर्थ मेथड। और सर देख, वो ना था, हम्म, ये कर सकते हो क्या क्वेश्चन को? कैसे बेटा? पहला जो दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा, हम्म, आप sin थीटा को दूसरे साइड ट्रांसपोज करके cos थीटा को रूट टू cos थीटा माइनस sin थीटा लेके आ जाओ। हम्म, फिर मैंने वही cos थीटा का वैल्यू इसमें वो डाल सेकंड मेथड है बेटा, मैं ये आप लोग को लिस्ट ये वाली पीडीएफ भेजूंगा, एक बार देखना, वो सेकंड मेथड है। अच्छा अभी दिखाता हूँ एक मेथड जो शायद आप लोग जानते हो। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, यहाँ से मैंने दोनों तरफ cos cos थीटा से डिवाइड किया, तो आई एम गेटिंग दिस। इज दिस ओके एवरीवन? इज दिस ओके एवरीवन? मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन अपॉन वन होगा। ये सबको क्लियर है? ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं कहूं अगर ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर मेरा रूट टू माइनस वन है और बेस मेरा वन, राइट। सो हाइपोटेनियस क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ तो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस? सर 4 माइनस 2 रूट 2। हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है, आप नो वरी। हाँ सर 4 माइनस 2 रूट 2। राइट। एच, एच के लिए फॉर्मूला क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मीन्स रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। 2 plus 1 minus 2 root 2 plus 1. Very good. 4 minus 2 root. Right? So सर h एच का रूट हुआ ट्रांसफर। under root of 4 minus 2. Right? ये 4 minus 2 root 2 मेरे पास आ रहा है। राइट, अगर मैं चाहूं तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ। राइट, ये मेरे पास है। ठीक, मेरे को प्रूफ क्या करना था? cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। राइट। सो अगर मैं यहां पर से tan थीटा जो मेरे पास है, यहां से sin थीटा भी निकाल सकता हूँ और cos थीटा भी, राइट। और दोनों तरफ से sin थीटा cos थीटा मेरे पास क्या आ रहा है, इसको उस cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 is equals to root 2 sin theta is root 2 minus 1 upon under root of 4 minus 2 root 2। ये तो तीनों में कॉमन है, ये तो कैंसिल ही हो गए, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 माइनस वन किया तो 2 माइनस रूट 2, अगर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस रूट। यस, दिस इज सेटिस्फाइंग। ये तो सबसे पहले हो जाना चाहिए था, tan थीटा की वैल्यूज ही गिवन है तो, नहीं? ओके, राइट। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलो एक बार आपको उपाय दिखाऊं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। दिस ओके एवरीवन? अक्षय ओके? यस सर। सर आप एक बार हाइट की वैल्यू आने के बाद वाले स्टेप वापस समझा सकते कौन सा बेटा? सर हाइट की वैल्यू 4 माइनस 2 रूट 2 आने कैसे के आई? बाद। उसके बाद नहीं उसके साइन, बाद हाँ। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा बी बाई एच एंड पी बाई एच हमने निकाला था ना। साइन थीटा होता है कितना? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, वो दोनों को लिख डाला। हाँ ओके सर। ओके, हाँ ओके। मैं यहाँ पर नहीं भी निकालता तब भी चल जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से वो कैंसिल ही हो रहे थे, राइट। अगर मैं उसको नहीं भी निकालता तब भी चल जाता। एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसके साथ में आपके पास था, ये जल्दी से देखेंगे सब लोग।
a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta plus b cos theta is equal to n. आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सर इसमें मैंने दोनों साइड्स रुक किया जा रुक जा स्क्वायरिंग। रुक जा रुक जा 2 मिनट ना, सब लोग एक बार जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं होगा तो जल्दी से उनको अटेम्प्ट करने देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करें। कि मैं आप सोचो कैसे स्क्वायर में लाने हैं, तो स्क्वायर में लाने के लिए बेस जो है वो सर हो गया। वेरी गुड। हो गया। वेरी गुड। देखें सर जो m में लिखा है और n में लिखा है उनका स्क्वायर करेंगे वेरी पहले। गुड, देख लें। वेरी गुड, यस बेटा बोले बोले अक्षय। सर जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा लिखा है इक्वल्स m, उसे हम लोग स्क्वायर करेंगे पहले और फिर सर n को भी स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड। सर फिर स्क्वायर के बाद आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और जो भी रहेंगे वो कैंसिल ही हो रहे होंगे, नहीं? यस सर, और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा और फिर सर प्रूव हो जाएगा। वेरी गुड। सेम अक्षय। अच्छा से ये दिस केवल ये दिमाग में आया बेटा, या और कुछ भी आया इस दिमाग, इस क्वेश्चन के लिए दिमाग में तेरे, या सर बस यही एक मेथड आया। यही आया? गुड। देखो मैं ना थोड़ा सा पुश करूंगा सभी को, आप सभी को, कि गो फॉर सेकंड वन, गो फॉर सेकंड वन, कि हर एक चीज को सोचने का तरीका थोड़ा सा हमारे को कोशिश सर थोड़ा सा एक और तरीका सर, दोनों को साइन थीटा से डिवाइड करके कर सकते हैं। दोनों को साइन थीटा से डिवाइड करके कर सकते हैं। बहुत प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा बेटा। हाँ एक बार ट्राई करके देखो, आप शायद थोड़ा गड़बड़ करेगा वो। और कोई? सर मैंने ऐसे लिया कि cos थीटा को b बाई एच और sin थीटा को p बाई एच, और सर उसके बाद ऐसा सिंप्लीफाई किया मैंने। तो फिर सर मेरे को एंड रिजल्ट पे एकदम ए बी एन प्लस बी पी एन इज इक्वल टू ए बी एम प्लस बी बी एन एम आया सर। उसके बाद सर नहीं समझा गया। नॉट बैड, उपाय आपका बड़ा अच्छा था। जो आइडिया आपने लगाया ना अमोघ, अच्छा उपाय लगाया था। मैं जो अमोघ बोल रहे हैं उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूं क्या? ये तो सबको समझ में आ गया, डायरेक्टली दिख रहा है। दोनों पे स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही हो जाते हैं, दोनों से अपने आप काम बन गया, राइट? व्हाट अमोघ इज सेइंग इज सर कॉस थीटा को बी बाई एच ले लेता हूं और साइन थीटा को पी बाई एच ले लेता हूं, एंड वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट एच स्क्वायर। कोई दिक्कत या डाउट? तो मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कैपिटल बी लिख देता हूं, इसे कैपिटल बी लिख, ठीक है, और इसे कैपिटल एच लिख, कैपिटल पी एंड कैपिटल एच, ठीक है। सो ए बी बाई एच प्लस बी P by H is equal to M square. First and second is A
P by H plus B by H is equal to N. सर आपने ऊपर m स्क्वायर कर दिया। ये दोनों दिए हुए हैं बेटा, राइट? और m स्क्वायर नहीं रहेगा, m होगा। हाँ बेटा N ही है, तो दिखा? हाँ सर, अब आया। ये दो इक्वेशन जो मेरे पास है, ये दोनों इक्वेशन को हमने कुछ ऐसा लिख डाला, राइट? ओके, यस सर। ये दूसरा वाला माइनस था ना? यस सर, माइनस का। भाई मैं यहाँ देखा, मेरे कैलकुलेशन वहां पर नहीं पहुंचे, तो तुरंत मैंने देख लिया क्वेश्चन, ठीक है? अब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास है, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ से P और B निकालूं फिर आगे बढ़ूं, या मैं यहाँ भी वही काम करूं जो अक्षर ने और श्रेयज ने किया था, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। क्या बोलते हो? A स्क्वायर कॉमन, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, और 2AB वाले दोनों टर्म कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू। और सर फिर ये 1 हो जाएगा। दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, आ गया आंसर। क्या सर आप बोल, विदाउट स्क्वायरिंग वाला भी एक बार दिखाएंगे? वो भी दिखाता हूँ बेटा, पहले सेकंड वाले को नोट कर लो, राइट? मतलब आप ये बोल के नहीं बच सकते हो मैथमेटिक्स में सर क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि उसे करने के कई सारे उपाय हैं। आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो 100% यूल गेट दैट, राइट? या तो लंबा जा रहा है या छोटा जा रहा है, राइट? नहीं हो रहा है, नहीं चलेगा। इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड दिखाता हूं। एक मिनट। सर ये मेथड भी सेम ही हो गया, बस हमने वो cos थीटा और sin थीटा को b बाय h और p बाय h कर दिया है। हमने यहाँ पर एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया रादर देन गोइंग फॉर, राइट, ट्रिग्नोमेट्री। ऑलमोस्ट दोनों सेम वर्क करके ना। मैं कल आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, एवरी डे यू हैव टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस ओनली, राइट? 3 क्वेश्चन करने हैं, और जो भी आपके सॉल्यूशन आते जा रहे हैं, आप लोग जो भी ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में आप अपने सॉल्यूशन साथ साथ में पोस्ट करते जाएंगे। डन एवरीवन? व्हाट आई एम सेइंग कि ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास था इसे, सर आप ऊपर कर सकते थोड़ा? हाँ तो ये नोट कर लो। हाँ सर, वो लास्ट है। डन? यस सर। थैंक यू सर। Yes. So what I'm saying, this is given without a square, right? See, the simplest form of this, what we can do is, I'm finding sin theta and cos theta. Is this possible to find sin theta and cos theta? बहुत simple से, कैसे? Right? If I have to find sin theta, right? So what I have to do to find this sin theta and cos theta? Right? If I'll multiply by a, right? So multiplying by a, I'm getting a square cos theta plus ab sin theta is equal to am. And again, I'm multiplying this by a square sin theta. Oh, or I'll multiply by b, right? So
AB sin theta minus B square cos theta is equal to BN. Is this okay? If I'll subtract both this, so what I'm getting? Both sin theta cancel out. This is A square plus B square cos theta is equal to AM minus BN. Is this okay? Similarly, you can find cos theta and you know the formula. What formula? If sin theta and cos theta you have, अच्छा sin square theta plus cos theta equals cos square theta Ah. equals 1. that's it. You know this. So this is simple. Nahi? Okay. सर आप रिपीट कर सकते हो? यस सर। What I'm saying ना बेटा, यहाँ से cos थीटा निकाला, वैसे ही अगर sin थीटा निकालना होगा तो फर्स्ट वाले को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से देन a से, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा मेरे पास आएगा, राइट। sin थीटा निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे b से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस इज mb राइट प्लस ne, राइट। दोनों निकल गए, आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जो आपको नंबर चाहिए वो नंबर आ गया, जो भी सॉल्यूशन है अपने आप आएगा। सर मेरे को वाला समझ नहीं आया। बेटा सिमेट्रियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, दो इक्वेशन मेरे पास है ना। यस इक्वेशन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू m, तो इसे a से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, राइट। इसे दूसरे वाले को b से मल्टीप्लाई करके दोनों में वो माइनस कर दिया, माइनस करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एंड b स्क्वायर कॉमन आउट, cos थीटा आ गया। सिमिलरली एक बार ऊपर b से और दूसरे को a से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, ये वाला। अब दोनों को स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इज 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस bn का होल स्क्वायर प्लस mb प्लस na का होल स्क्वायर, राइट। व्हाट आई एम गेटिंग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दिस कैंसलिंग आउट विथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो जो आपको चाहिए था वो सॉल्व। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें अच्छा है, बट यू आर गेटिंग द आंसर, राइट। ओके, right, based on these questions, right, be careful, based on these questions, right, I'm just giving you 2-3 questions, right, careful everyone. If I'm saying is six सर सर आपने ग्रुप पे एक क्वेश्चन बनाया था, वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था। कौन सा बेटा? सर वो tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस वो एक बार और सभी को भी देना है, वो कुछ लोगों को नहीं दिया था, मैं देता हूँ, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। यस सर। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा। क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। सर यहाँ पे हम लोग sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या?
क्या बेटा, फिर से एक बार बोलें। सर यहाँ पे हम लोग सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख के और tan थीटा को cos थीटा/sin थीटा लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करो, नॉट बैड, गुड आइडिया। सर आंसर इंटीजर है। फ्रैक्शन इंटीजर चलेगा बेटा, दोनों में ही। वेरी गुड, वेरी गुड। पुरंजय, वेरी गुड। कई मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, राइट। वेरी गुड ज़ील, वेरी गुड। सर सेकंड मेथड भी ट्राई करना। ये तो बोलने की बात ही नहीं रहनी चाहिए अब तो। नहीं, जैसे फर्स्ट हुआ तुरंत तुरंत सेकंड, सेकंड हुआ कोशिश करो थर्ड। एटलीस्ट 2 पर तो आपको जाने ही जाना। विहान, यस सर। साइन कॉस में चेंज करो बेटा। सेक और टैन को साइन कॉस में चेंज करो। तो उधर आगे बढ़ो थोड़ा सा, देखो क्या आ रहा है। हिमाया, चेंज द फंक्शन इनटू साइन कॉस। साइन कॉस में करो, देखो क्या आता है। हाँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, यू विल गेट समथिंग वहां से ना। अनुष्का, डन बेटा। सर मैंने बीच में एक मिस्टेक कर दी, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, जयेश कैलकुलेशन चेक करो। श्रेयज, फास्ट फास्ट फास्ट, गो फास्ट। अमोघ, फास्ट। सोचने में टाइम नहीं देना अब, वर्किंग है, सिर्फ वर्किंग है। मैनिपुलेशन सीखो, कैसे मैनिपुलेट करके फास्ट आंसर लाएं। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री। यस, अच्छा, राइट डाउन, राइट डाउन। क्या आया तेरा? हाँ ना, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होगी बेटा, उससे बड़ी हो नहीं सकती। क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बोल रहे हो ना, सबसे बड़ा साइड तो हाइपोटेनियस होता है। नहीं, तो अगर हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड है, राइट, तो हमेशा हम लोग को ख्याल रखना है कि हाइपोटेनियस से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो भी फ्रैक्शन आ रहा है साइन और कॉस का, वो दोनों ही -1 से 1 के बीच में हो। आए, बाप रे बाप, जैस कुछ खतरनाक आ गया तेरा आंसर है। थोड़ा आराम से कैलकुलेशन चेक करो। हाँ, लास्ट 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर मुझे तो 2 ही आ रहा है। अरे आओ देखता हूँ, चलो साथ में देखते हैं। क्या किया, थोड़ा आइडिया दो, क्या किया आपने? सर पहले मैंने सबको साइन और कॉस में किया दोनों में। चलो, साइन कॉस में मैं भी कर लेता हूँ, साथ साथ ही करता हूँ। सेक का मतलब हो गया 1/cos थीटा। tan का मतलब हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हो गई 3/2, तो दिस इज 1 + साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। अब क्या करूं बताओ?
सर इसके बाद तो मैंने cos थीटा की वैल्यू 2 ले ली क्यों? सर, क्योंकि cos थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तभी डिनोमिनेटर में 2 है। आप ऐसा सर वो कभी पॉसिबल कंपेयर नहीं कर सकते ना कि a बाई बी इज इक्वल टू मान लो 2/3 है, तो यू कांट से कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ये गलत हो नहीं, जरूरी थोड़ी है तुम सर कॉस योर तो एक एज रेशियो एंड है। माई एज ना, हम दोनों के एज का रेशियो, राइट, हम दोनों के एज का रेशियो 5:2 है, ठीक है, बात समझ गए? अब 5:2 अगर हम दोनों के एज का रेशियो है तो ना मैं 5 साल का ना तू 2 साल का, ये तो रेशियो है, राइट? रेशियो वी कांट से कि ये नंबर एग्जैक्टली होगा, राइट? बट नॉट बैड, अगर कुछ वैसा नंबर होता तो शायद ये वर्क करता। अगर यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा कुछ आ रहा होता तो 1 की जगह पे, तो हमारे पास डिवीजन में कोई नंबर आ सकता, राइट? सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि हम लोग इसको इधर +1 कर सकते हैं और उधर मतलब स्टार्टिंग के एकदम क्वेश्चन पे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 इस इधर एक +1 डाल सकते हैं, इधर +1 डाल सकते हैं, तो फिर सर 2 sec थीटा इज इक्वल टू सर 5/2 आएगा। उसके बाद sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 सर, फिर tan थीटा मिल जाएगा हमको 1/4 सर। उसके बाद नहीं समझ आ रहा क्या करना है। कुछ फर्स्ट वाला स्टेप में दोनों तरफ +1 डाल सकते हैं, तो ये डाला मैंने, तो क्या होगा इससे? सर 2 sec थीटा इज इक्वल टू 5/2 2 sec थीटा कैसे आ गया ये? सर tan थीटा +1 1 प्लस tan सर वो तो स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर, सर सॉल्ट सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा? अच्छा सर सॉरी सर सॉल्ट सर हाँ बेटा। फाइनली फाइन सर हम उसको हाइपोटेन्यूज बेस और सर परपेंडिकुलर के कैलकुलेशन टर्म्स में एरर ले की वजह सकते से रॉन्ग आंसर आ रहा था बार बार। तो एक तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट, और यहाँ से आंसर निकालना है, राइट? तो चलो निकाल के देखते हैं, राइट? अक्षय, आपने जो किया था पहले वाले क्वेश्चन में ना बेटा, वो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट? मैं आपको आसान पड़े इसलिए मैं कर रहा क्या हूँ, मैंने दोनों को ऊपर नीचे स्क्वायर कर दिया, एंड आखिरी में मैं केवल पॉजिटिव वाला आंसर दूंगा क्योंकि मैं नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर दूंगा, राइट? तो ये है 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 9/4। 1 प्लस साइन थीटा कैंसल आउट, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 9/4। इज दिस ओके? सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 4 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन थीटा, 9 को इधर लाया, 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 5। आई गेस साइन थीटा की यही वैल्यू सबको आई। यस सर। फर्स्ट सर ये सर मेथड के अलावा सर मुझे एक और आएंगे सेकंड बेटा, मेथड। अभी आएंगे अभी आएंगे, रुक जा। सर मुझे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा नहीं समझा, ये कैसे ये कर? ऊपर था 1 प्लस साइन थीटा बेटा, और नीचे था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कहा कि वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है, तो 1 प्लस साइन अच्छा, थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया उसने। ओके सर, ओके। सर हम उसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के अभी से आएंगे भी कर बेटा, सकते 2 सेकंड दे दो, ये नोट सर करने। मेरे को थर्ड स्टेप समझ नहीं। थर्ड स्टेप कौन सा बेटा? ये यस सर। दोनों को स्क्वायर किया बेटा लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है? फर्स्ट मेथड आपने जो बोला, मैंने उसी से कोशिश की कि उसी को मैं साथ साथ मिला, राइट? सेकंड पे अभी आता हूं तुरंत। ओके, हेलो क्या हेलो हेलो बीच में करता रहता है तू जयेश?
नहीं शायद बीच बीच में थोड़ा खराब नेटवर्क चला जाता है बीच में, कुछ नहीं तो जाता बेटा, कोई नेटवर्क नहीं जाता, बहुत रेयर होता है वो सब ना। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो है ये गिवन है 3/2, राइट। चलो जयेश कुछ बोल रहे थे बेटा, आप बोलो। सर मैंने सेक थीटा और टैन थीटा को हाइपोटेन्यूज बाय बेस और परपेंडिकुलर बाय बेस लेके सॉल्व किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिर मैंने निकाले। पुरंजय ने भी यही किया ना, पुरंजय? यस सर। चलो देखता हूँ अभी। ये सर है मैंने भी ऐसे ही किया था। अच्छा 1 + sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3/2, राइट। तो sin थीटा मेरे पास क्या होता है, p/h। cos थीटा क्या होता है, b/h इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया h प्लस p अपॉन b इज इक्वल टू 3/2, ऐसा, हाँ हाँ सर ऐसा ही कुछ रिलेशन आ रहा बेस 2 ली। राइट। सो ये आ गया 2h प्लस 2p इज इक्वल टू 3b, राइट। सो 2h इज इक्वल टू 3b माइनस 2p, यही कुछ। है। इसलिए मैंने गलत कैलकुलेशन जैसे मुझे वो अजीब अब वैल्यू दोनों तरफ में स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। 4h² इज इक्वल टू 9b² प्लस 4p² माइनस 12bp। हाँ अब बताएं इसके, ये h² को p² प्लस b² रख दिया, यही ना। तो 4p² प्लस 4b² इज इक्वल टू 9b² प्लस 4p² माइनस 12bp। 4p² कैंसल आउट, राइट। b² को सॉल्व किया तो 5b² इज इक्वल टू 12bp। b कैंसल आउट, मेरे पास आ गया p/b इज इक्वल टू 5/12। टैन थीटा tan वो आ थीटा, ये tan थीटा आ गया। इसी से sin थीटा आप निकालोगे, दैट इज 5/30। कुछ ऐसा। हाँ सर वही क्वेश्चन, यस। वही हो गया सर। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। सेकंड मेथड ना, लेकिन कहानी में थोड़ी ट्विस्ट। मैं क्या चाहता था वो अब दिखाता हूं। नोट कर लो, जल्दी से इसे नोट करो, ये काफी अच्छा मेथड आप लोगों ने सॉल्व किया बेटा, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छे मेथड से आप लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन मैं चाहता था मेथड को कुछ और भी करना। देखें, सर आप चाहते थे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन अवॉइड हो। सर फिर 5/12 जो tan थीटा है sin थीटा कैसे करेंगे? और p/b/h वाला फॉर्मूला बेटा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², वो पाइथागोरस जो कल किया था हम लोगों ने। ये ऐसा है तो एक ट्रायंगल पहले हमने बना लिया, राइट। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, राइट। ये बेस है, बेस कितना बोल रहा है 12, हाइट बोल रहा है 5, ये है 13, ये एंगल है थीटा। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस ना, यस क्या सर। तरीका था ये। हाँ सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ सॉरी, राइट। tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसी से साइन थीटा निकाल दिया, ठीक है। ओके, ठीक है ना अक्षर। यस लेकिन मैं क्या चाहता, क्या था, मैं कौन सा मेथड, कोई और मेथड किसी ने लगाया हो? सर अनुष्का कुछ और लगाया बेटा? सर मैंने ऊपर और नीचे लाइक उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या मेथड लगाया है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे पास गिवन था सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/2। अगर मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, दोनों साइड पे, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। इज दिस ओके? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या हो गई? सर 1। 1।
तो यहां से ध्यान दो, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा 2/3 को इधर ले आता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, सही है। यस दोनों सर। को ऐड करूंगा तो 2 सेक थीटा मिलेगा। दोनों का एडिशन क्या आएगा, 3/2 प्लस 2/3, 9 प्लस 4 13/6, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो टैन थीटा मिलेगा। टैन थीटा क्या आ गया, वैसे यहीं से आंसर तो निकल गया आपका, राइट। अगर ध्यान, 5/6 आ जाएगा। हाँ राइट, कॉस थीटा की वैल्यू इसी से अगर आप देखो तो आ रहा है आपके पास क्या, 12/13। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, 5/13। इतना सा क्वेश्चन था बस, क्या बोलते हो, राइट फॉर्मूला यूज होने पर ना वो एक ब्यूटी आती है क्वेश्चन में। हाँ, राइट फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है ना तो परफेक्टली दिखाई देगा, अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, नहीं। ओके, ये क्लियर है सभी को। राइट, गुड, वेरी गुड। सो इसी को यूज करते हुए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 3 sin θ plus 5 cos θ is equal to 5, then prove that 5 sin θ minus 3 cos θ is equal to, चलो प्रूव दैट +-3, ये आपको पता। जितना अगर दिक्कत हो रही हो, जितना आज क्वेश्चन किया है थोड़ा सा उसको एक बार गो थ्रू करो, शायद यहीं पर कहीं आपको क्वेश्चन दिखेगा। और मैं इसलिए प्रूफ दैट दे रहा हूं कि आपको कंफर्टेबली दिखना शुरू हो जाए। सर +-3 का मतलब क्या है, इसमें स्क्वायरिंग होगा? हाँ वाह, वेरी गुड, बहुत सही पॉइंट पकड़ा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब ये थीम को पकड़ के आगे बढ़ो। सर स्क्वायरिंग की जगह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो स्क्वायर ही आएंगे। स्क्वायर आएंगे बेटा, एक बच जाएगा, फिर जो मल्टीप्लाई किया आपने वो बिना स्क्वायर के रह जाएगा। अच्छा, ओके सर। हाँ, मतलब ये बहुत, अमोघ ने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि वो दिखाई दे रहा है कि हाँ इसको प्रोसीड कैसे करना, राइट। अब कैलकुलेशन को कंट्रोल करना, बस कैलकुलेशन में नो गड़बड़ प्लीज। सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोई वैल्यू होता है क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता तो है बेटा, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं, बिना उसके यूज ही करना पड़ेगा हमें। ओके सर। अभिजय डन, वाओ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जो आज आज क्या है, हमने थोड़ा सा रिलेट करो। ओके। डन, वेरी गुड। तो स्क्वायरिंग के अलावा भी कोई मेथड है क्या? स्क्वायरिंग के अलावा स्क्वायर तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके कैलकुलेशन में अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। कोशिश करता हूं मैं। ओके। मैं स्टार्ट करूं? 2 मिनट। सर डन सर। वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन। स्टार्ट करें? ये सर। चलो, किसके हो गए? अभिजय क्या क्या आपने बताया बेटा? जयेश व्हाट यू हैव डन? सर मैंने वो होल स्क्वायर किया पहले उस टर्म को, और फिर घुमा फिरा के फिर उसे इस टर्म पे ब्रेक डाउन घुमा फिरा के घुमा फिरा के मतलब ट्रांसपोजिशन वगैरह करके, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का आइडेंटिटी उसका। ओके ओके ओके। जील क्या किया आपने? सर मैंने दोनों साइड को स्क्वायर किया तो वो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 25 आया। हम्म। फिर उसको मैंने 9 कॉमन निकाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 25 किया। ये देखना ध्यान से ना, ये देखो जी, देखना ये बेटा ध्यान से, ये आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत या डाउट किसी को भी? एनीवन नो वांट सर। एनीथिंग ऑन दिस? सबको ठीक है यहाँ तक? एक छोटा सा वर्किंग देखना, ये कितना मैजिकल काम करता है वो देखना। मैं 25 इंटू 1 लिख सकता हूँ इसे, 25 को 25 इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बात है, राइट? एंड 1 को क्या मैं इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? यस। न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना कितना मजेदार चीज आएगा। नाउ इफ आई ओपन दिस अप, दिस इज 9 साइन स्क्वायर थीटा 30
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर थीटा. Are you getting this? सर 25 कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा. ये कैंसिल. तो अपने आप मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 माइनस दिस इज 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. और यहां से थीटा की वैल्यूज ही आ जाएगी इनफैक्ट, नहीं? हाँ सर. साइन थीटा एक कॉमन आ गया, राइट? तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 30/16, राइट? 15/8. इज दिस ओके? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 15/17. कॉस थीटा की वैल्यू 8/17 तो सब्स्टिट्यूट करने पे आ जाएगा. बात समझ में आ रही है? इज दिस ओके? क्या सही है? मैंने स्क्वायर आपने कर सर आपने वो 0 कैसे किया, आप बता सकते हो? इसको बेटा दोनों तरफ कैंसिल हो गया ना, 25 कॉस स्क्वायर थीटा. पर सर वो 25 साइन स्क्वायर थीटा तो था ना वहां सर पे. हमें +-3 प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3 की. वो आगे चल के थोड़ा सा समझ में आएगा और ना वो सर क्या. मुझे ये समझाने कि आपने 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा में काटा कैसे? दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ कैंसिल किया, दिखाता. सी व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास जो गिवन है, राइट, मैंने 3 साइन थीटा फिर से करके दिखाता हूँ ना, ध्यान से देखना. 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन है, राइट? और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. इसी को मैं ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ एक्स, दिखाता, राइट? आपको उस पर कंफ्यूजन है तो मैं सिंपल सा तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, अब दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर देता हूँ. क्या आ जाएगा स्क्वायर करूंगा तब? राइट, ये गया 3 साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 5 कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25. सही है? सिमिलरली इसे स्क्वायर करूं तो 25 या 5 साइन थीटा समझा सर. द होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस थीटा द होल स्क्वायर, राइट? एंड यहां आ जाएगा -30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये क्या आ रहा है? देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं. ये क्या आया? 9 प्लस 25, राइट? 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 34 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर 34 मैं कॉमन ले लूं, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 25. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. So this is x square is equal to 34 minus 25. क्या आ गया? सर मैंने ऐसे किया सर. 9. तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस. अब ठीक है? अब ठीक है, राइट? आपके स्क्वायर का भी आ गया, अंडर रूट भी आ गया, एंड प्लस माइनस जो वैल्यूज आनी थी वो भी मैं ले आया. सर आप ऊपर कर सकते हो जहाँ पे आपने मेन सोल्यूशन लिखा था. इसको देख लो बेटा, क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको देख लो, क्योंकि वहां प्लस माइनस को फिर जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा आगे आपको पढ़ना पड़ेगा. इसलिए मैंने सॉल्यूशन को थोड़ा ऐसा कर दिया कि आपको एक बार में डुएबल हो जाए कि क्या हो. उस वो भी एक बार करके दिखाता हूँ, राइट? दूसरे तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, एक बार मैं आंसर लाके दिखाता हूँ, देखना. अभी पहले इसे कर लो, फिर वो दिखाता हूँ.
सर यस सर मैंने भी यही मेथड से किया, प्लस 13 थीटा कॉस थीटा वैसा। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। ये देख लो, ये भी मेथड यहाँ पर था बेटा। यहाँ मैंने 25 कॉस स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दी, राइट। यहाँ से 9 को इधर ट्रांसफर किया मैंने, 25 माइनस 16 एंड दिस इज 30 साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 16 साइन थीटा माइनस 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। उसी को ट्रांसफर करके ये लिखा मैंने tan थीटा की। इज दिस ओके? सर वो tan थीटा कैसे है वो नहीं समझा मुझे। ये जैसा है ना बेटा, इसे लिखा 16 साइन थीटा इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा, ये सही है। यस इसे डिवाइड अच्छा कर दिया तो ये आ गया समझाने tan की चला थीटा गया। 15/8। ठीक है, हाँ यस सर समझा। ओके। यस तो कभी कभी एक नंबर 1 को भी आप इतने अच्छे से यूज कर लेते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक में, कि वो अपने आप काम बन जाता है, राइट। तो बहुत तरीके से आप काम चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, राइट। सो क्वेश्चन था, मैं एक बार चाहूंगा आप लोगों को, 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करें। ठीक है, तो सर डन। वेरी गुड। सर दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं क्या? मतलब दोनों में से तो नहीं बेटा, दोनों में से मतलब एक में से कॉस और एक में से साइन। हाँ, मतलब अलग अलग करके हमें काम करना पड़ेगा। बट क्योंकि देखो, ये इसका थीम ये है ना, आपको यूज करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो कितने अच्छे तरीके से यूज होता है वही आपके लिए बेस्ट काम करेगा। यस सर। कुछ ऐसा मतलब -1 + 1 0, ये क्या है अमो? सर प्रूफ हो गया। तो लिखा तुमने क्या, -1 + 1 0, तो इसका क्या मतलब? सर मतलब प्रूफ हो गया सर, मतलब सर इसकी वैल्यू -1 आ रही है, कैसे इसकी वैल्यू -1 आ रही है? सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर और उसके 3 उसके ऊपर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर उसके ऊपर का थीटा का उसके ऊपर का क्यूब, फिर सर -3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर सर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसके ऊपर स्क्वायर सर उसका। जो हमने कल किया था ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना ना। शायद आप लोगों को ये दिखाने के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ किया। इसके लिए तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है, AQ + BQ, राइट। A + B बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा -2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन, केवल इसे लिखा हूं, इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन? सर मैंने तो बस होगा ना। पहले दिखाता क्यूब करके था। मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ ना, देखना। तो वो थोड़ा सा आएगा थॉट पे। ओके, शायद एक लाइन पे का ही क्वेश्चन था, हमें दूसरे लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ठीक है, ये लाइन सबको ठीक है।
राइट डाउन यस एवरीवन। तो एक बार फिर से बता सकते हो? मैंने इसे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा। ये ए है, ये बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या? प्लस बी वेरी गुड, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? वन। 1 And this is sin to the power 4 theta, this is cos to the power 4 theta minus sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये वन वाले को मैंने नहीं लिख के केवल जो बचा हुआ है इसको लिख दिया। ये सही है? ओके सर, यस Yes, सर, sir. ये सही है यस सर। सबको? Yes, sir. नाउ 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 देखना, इससे हटा लूं, इससे हटा दूं, एंड सेकंड वाला जो लिखा हुआ है जैसा लिखा है उसको वैसा ही रहने देता हूं 3 टाइम्स। ये 2 टाइम्स तो माइनस हो ही रहा है, दिख रहा है राइट। ये जो 1 है, इस 1 को, हाँ ध्यान से सुनना, इस 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और उसका स्क्वायर भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? मैं बोल रहा हूं आपको जो चाहिए प्रूफ हो गया, अब आप देख के बताओ कैसे। सर वो उस पर एक्सपैंड करेंगे तो सबका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ये एक्सपेंशन में क्या जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, सर सब काट पुट के 0 ही होगा। हाँ ये कैंसल, ये कैंसल, क्योंकि ये 2 है, ये प्लस 1 3 हुआ, माइनस 3 से कैंसल, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये रहा सी। सो इट्स प्लानिंग राइट, कि छोटा सा 1 भी मेरे लिए मैजिकल काम कर जाए राइट। वो प्लानिंग हम लोग को करनी पड़ेगी, कैसे इसको वहां तक लाना है मेरे को राइट। I hope everyone is understanding this, right? तो जितने भी नंबर्स हैं राइट, यहाँ पर मैंने जो कैंसिल किया उसको एक बार आप ध्यान से देख पाए, इसलिए ये कैंसिल किया को मैंने हटा दिया राइट। ओके, जल्दी से अब आज जो भी पढ़ाया हूं एक बार जल्दी से गो थ्रू करो, कहीं पर कंफ्यूजन या डाउट लग रहे हो प्लीज आस्क। 2 मिनट आपके लिए। सर मुझे सर वो एकदम जो आपने पहला जो कल का होमवर्क था ना कि वन माइनस cosec थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर cosec थीटा माइनस cos थीटा, एकदम वो सबसे पहला तो। ये पहला क्वेश्चन था बेटा। ये सर हाँ हाँ सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि ये जो दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको ऊपर नीचे कॉसेक ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कॉट है कि कॉस है? कॉट। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू होती है 1 राइट। तो ये बच गया मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए राइट माइनस 1 बाई साइन, ये बच गया राइट। यहां से मैंने कॉसेक ए को रहने दिया यहां पर, और कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए इज कॉसेक ए, उसे ये लिख राइट। अब वो जैसे मेरे पास आ गया तो मैंने ये वाले से माइनस साइन बाहर निकाल दिया राइट। ये बन गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस ये बन गया। इसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो बन गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो 1 होता है। आपको जो चाहिए था वो आंसर आ गया, कॉसेक ए को लिख दिया 1 बाई साइन, दैट्स इट।
राइट। नेक्स्ट। तो कल मैं आप लोगों को होमवर्क डालूंगा। आज केवल आपका एक ही काम है, जितना क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है उसको प्लीज अच्छे से देख के रख लें। एवरी डे 3 क्वेश्चन यू हैव, ओके, एंड सॉल्यूशन को आप उसी में डाल देंगे। सबका मिला के मैं एक ग्रुप आप लोगों को बना के रख, ठीक है। सर आज होमवर्क नहीं है? आज का होमवर्क है बेटा, जो मैंने पढ़ाया है वो पूरे करने हैं, राइट। आज के लिए 3 क्वेश्चन आपको अलग से मैं डालूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखें। ओके एवरीवन, बाय राइट। सर, थैंक यू चलो, सर। हैप्पी संडे, बाय सर, थैंक बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, बाय sir. बाय।